Hello and welcome. In the last lecture, we have defined the concept of automorphism of group G. And we know that automorphism is nothing but an isomorphism from G into G. And because of that, it's a domain and codomain, both are same group. That's why it is called as automorphism, right? Now, the interesting thing is, and also we have proved that the set of all, collection of all automorphisms forms a group under the operation composition, right? So, now the interesting question is that if suppose somebody gives you one group, किसी ने आपको एक ग्रुप दिया, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, तो सवाल ये खड़ा होता है कि आप कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन कर सकते हो. इसका आंसर देना इतना आसान काम तो है नहीं. इट्स वेरी क्वाइट tricky and quite difficult. But the thing is that can I write one of the automorphism? बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ऑटोमॉर्फिज्म मैं लिख सकता हूं. तो जवाब है यस, यस वी कैन राइट. एंड वेरी ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग. So if suppose capital I is the identity mapping from group G into G, and because of that it is identity mapping, therefore we can define that I of X is equal to X. And this mapping is trivially homomorphism 1 onto the domain and codomain both are same, therefore this is definitely an automorphism of G. लेकिन भैया एक मैपिंग से या एक एटोमॉर्फिज्म से काम नहीं चलेगा ना, है ना. ये तो ट्रिवियल है. आइडेंटिटी मैपिंग जो ऑटोमॉर्फिज्म बन रही है दैट इज ट्रिवियल. इसके अलावा अदर देन आइडेंटिटी मैप क्या आप कुछ ऑटोमॉर्फिज्म हमें लिखकर डिफाइन करके बता सकते हो? तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट जॉब है. दैट्स व्हाई द न्यू थिंकिंग, and that is how to construct automorphism of G easily. तो बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स है, उसमें से कुछ ऑटोमॉर्फिज्म हम बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं. और वो डिफाइन करने के लिए वी नीड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेसी. ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेसी का मतलब मैं समझाता हूं आपको कि now you take one element from the group, so I'm considering let A be the element from G and it is fixed. This element is fixed. ठीक है. Now I'm defining a mapping. It is denoted by like this T that represent a mapping and the suffix is A. TA. So that means this mapping somewhat connected to the element A. And that A is a fixed element. Now this is a mapping I'm defining from G to G by see the rule of this mapping. So TA of X is equal to, this element is fixed, you take the inverse of that element into this element X and then original element A. So if I'll define mapping from G into G in this fashion, so if you see the right hand side is the condition of conjugacy of A. So ये एक स्टैंडर्ड कॉन्जुगेसी रिलेशन है. उस रिलेशन से अगर हमने एक मैपिंग डिफाइन किया जो इस तरीके से दिखता है, तो क्या ये मैपिंग हमें गारंटी देगा कि क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म होता है? तो इसको तो चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म, ये मैपिंग होता है या नहीं होता है, लेकिन ये होगा. और आपने इस मैपिंग को, इस ऑटोमॉर्फिज्म को एक स्पेशल तरीके से डिफाइन किया, बड़े आसान तरीके से डिफाइन किया, ताकि आइडेंटिटी के अलावा आप कोई और ऑटोमॉर्फिज्म दे सकते हो.
अब देखिए ए बदलते जाइए, एक एलिमेंट ए था तो ये मैपिंग मिला, दूसरा एलिमेंट बी लीजिए दूसरा मिलेगा, तीसरा एलिमेंट सी लीजिए सी, मतलब जी के जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट आप यहां पर ले सकते हो और आपको मैपिंग इस तरीके का मिल सकता है, राइट। तो आसानी से तो हमने अदर देन आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म इस तरीके से डिफाइन कर लिया। इसी ऑटोमॉर्फिज्म को, स्पेशल ऑटोमॉर्फिज्म को बोला जाता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। सो सच अ मैपिंग्स which will become automorphism of G are called as inner automorphism. Special type defined by special way, inner automorphism of G, right? And if we collect all the inner automorphisms of G, then that collection is denoted by like this, capital I of G. It is a set of all inner automorphisms. Okay. Now naturally question arises, sir, why we are giving this name inner automorphism? Because we have defined this automorphism in a special way in the term of conjugacy relation. That's why such a automorphisms which is defined in terms of conjugacy, that is inner automorphism. Okay, that's fine. The rule is different, therefore we are denoting by different name, inner automorphism. But the problem is, what is its significance in the group theory? So इसका significance ये है कि ये जो भी हमने डिफाइन किया जिसको हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं, ये बेसिकली ऑटोमॉर्फिज्म ही होता है। मतलब जो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप था, पिछले लेक्चर में हमने ए ऑफ जी ग्रुप बनाया, उसी में से ये एलिमेंट होते हैं। मतलब ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म दैट इज आई ऑफ जी विल बिकम अ सबसेट ऑफ ए ऑफ जी। अच्छा, तो ए ऑफ जी तो हमने ग्रुप प्रूव कर दिया था लास्ट लेक्चर में। अब ये I of G that is a set of all inner automorphism is a subset of A of G। तो सर क्या ये उस ग्रुप का सब ग्रुप बनेगा? यस, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और सिर्फ सब ग्रुप नहीं बनेगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप भी बनता है। अच्छा, ये नॉर्मल सब ग्रुप भी बनता है। और वंस वी गॉट द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप, देन वी आर रेडी टू कंस्ट्रक्ट इट्स अ क्वोशंट ग्रुप। तो ये क्वोशंट ग्रुप बनाने के लिए हमको नॉर्मल सब ग्रुप की जरूरत होती है, जो मोस्टली हम कर्नल लेते हैं। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है, तो वी कैन देखिए ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है? ए ऑफ जी का। तो ए ऑफ जी ये आपका ओरिजिनल बड़ा वाला ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स। और फिर इसको हम क्वोशंट ग्रुप बनाएंगे इस सब ग्रुप के साथ। और क्वोशंट ग्रुप बनाने के लिए ये चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। विल प्रूव दिस। तो ये क्वोशंट ग्रुप बना। अब ये क्वोशंट ग्रुप बनने के बाद ये जो भी ग्रुप रहेगा, इसमें कौन रहेगा? इसमें भी ऑटोमॉर्फिज्म रहेंगे, इसमें भी ऑटोमॉर्फिज्म रहेंगे। एंड दीज ऑटोमॉर्फिज्म्स आर कॉल्ड एज, इट इज अ ग्रुप ऑफ outer automorphisms. It means that automorphism which is not inner, that is called as outer. And the union of inner automorphisms and all outer automorphisms, that will give you the same group of automorphism. तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म में जितने ऑटोमॉर्फिज्म इनर बन गए उनको अलग से ले लिया हमने आई ऑफ जी में, और जितने बचे दैट इज आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, तो ये सिग्निफिकेंस होता है कि ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप बनेगा वो सब ग्रुप बनेगा ए ऑफ जी का, प्लस वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, फिर वो आपको क्वोशंट ग्रुप बना के देगा, एंड फिर क्वोशंट ग्रुप से आपको ग्रुप ऑफ आउटर ऑटोमॉर्फिज्म्स भी मिलेंगे। और एक सिग्निफिकेंस ये है कि जो ये
ग्रुप ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा, दैट इज उसको हमने डिनोट किया था आई ऑफ जी से, है ना, इसको हमको प्रूव करना है अभी। इसकी और एक सिग्निफिकेंस वाली बात ये होती है कि दिस ग्रुप ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज अ नेचुरल रिफ्लेक्शन ऑफ जी। देखिए, ए ऑफ जी का मतलब ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म का ओरिजिनल जी के साथ वैसे कोई स्ट्रक्चरल रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप बनाते हो तो इसका रिलेशन आप ओरिजिनल जी के साथ जोड़ सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। तो आप यहां वो ओरिजिनल ग्रुप ले लीजिए, उसका क्वोशंट ग्रुप बनाइए यहां Z के साथ। Z इज द सेंटर ऑफ ग्रुप G। तो ये क्वोशंट ग्रुप जो G का है, G बाय Z, वेयर Z इज द सेंटर ऑफ ग्रुप G, वो क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। और ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म जिसमें मैपिंग्स होते हैं और ये सारे कोसेट होते हैं, ये क्वोशंट ग्रुप में तो कोसेट होते हैं ना, तो ये कोसेट है, ये मैपिंग्स है, और फिर भी ये दोनों आइसोमॉर्फिक बनेंगे। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। देयरफॉर वी आर स्टडीइंग द न्यू थिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दैट इज अ ग्रुप ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, प्रूव दैट, अगर ऐसा सवाल आता है, प्रूव दैट the group of inner automorphism is isomorphic to the quotient group G by Z, where Z is the center of group G. तो सेंटर क्या होता है मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूं जब भी वो फाइनली आएगा। अभी हमको ध्यान ये रखना है कि इधर एक ग्रुप है, ये भी ग्रुप है ना, बेसिकली सब ग्रुप है ए ऑफ जी का, बट एवरी सब ग्रुप इज इटसेल्फ इज अ ग्रुप। तो ये ग्रुप है, इसका ऑपरेशन कंपोजिशन है, ये ग्रुप है, लेकिन इसका ऑपरेशन कंपोजिशन नहीं होगा क्योंकि इसमें मैपिंग्स नहीं है। इसमें जी का जो ऑपरेशन रहेगा वही ऑपरेशन हम यूज करेंगे, और ये दोनों को हमको आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो एक साइड का ग्रुप जो है वो क्वोशंट ग्रुप है, तो यहां पर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम में मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूं हाउ टू प्रूव दिस। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन अ मैपिंग फाई फ्रॉम G टू I ऑफ G। कैसे भी करके हम डिफाइन कर लेंगे, वो वेल डिफाइन होगी। और इस मैपिंग को हमको बताना है कि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि वी वांट टू यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो उसके लिए ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना जरूरी है। सेकेंड चीज कि इसको बताना है ये ऑन टू है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इन दैट केस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म G ऑन टू कोडोमेन। तो ये मैपिंग ऑन टू होना चाहिए, तो ये ऑन टू नेस भी हमको इसका प्रूव करना होगा। तो जब ये दो चीजें प्रूव कर देंगे हम, तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम, यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। And according to fundamental theorem of homomorphism, we can prove that the codomain is isomorphic to domain by its kernel. It's a kernel and kernel of that homomorphism. And but we want to show that it is isomorphic to G by Z. तो यहां Z नहीं आया, तो लास्टली आपको कर्नल ऑफ फाई जो भी रहेगा दैट इज इक्वल टू Z, ये प्रूव करके बताना होगा, ताकि यू कैन रिप्लेस दिस कर्नल बाय Z। सो फाइनली यू विल गेट दिस proof I of G is isomorphic to G by Z, where Z is the center of group G. Alright, so this is the plan, and if we will execute this plan, then we will reach this result. A group of inner automorphisms of G is isomorphic to G by Z. Okay, now first of all we have to show that this is a group. So how to show that? Whether I'm thinking that whether I will prove all the four conditions, or just I will prove only subgroup of A of G. Then if it will become subgroup, then
it is itself a group. Therefore, we have to show that first this is a subgroup of A of G, then show that it is a normal subgroup of A of G, and later on you define this mapping, and using the definition you show these four things, then you will get the answer. Okay, so how I can show that? Now the next target is what is the theorem? First I will write statement of our theorem. Prove that group of all inner automorphisms of G is isomorphic to G by Z, where Z is center of group G. Keep remember that plan, right? So I'll start with proof. The proof is like this. The first claim is to show that this I of G is a subgroup of A of G, subgroup of ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स. ये सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स है, इसमें के कुछ स्पेशल इसमें कलेक्ट किए जो उस कॉन्जुगसी से डिफाइन होते हैं और उसको हमने नाम दिया इनर ऑटोमॉर्फिज्म. तो दिस इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ ए ऑफ जी. ठीक है, तो इसका हर एलिमेंट ऑटोमॉर्फिज्म रहता है, लेकिन वो कॉन्जुगसी रिलेशन से डिफाइन किया होता है. सो दैट्स व्हाई clearly we can write that clearly I of G is a subset of this group A of G. Now it is a subset. Now I want to show that this subset is a subgroup of A of G, and we know that to show that the subgroup we need two elements. आपको दो एलिमेंट लेने होंगे. कहां से लेंगे? जिसको सब ग्रुप बनना है, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है, उसमें से हम दो एलिमेंट लेंगे. एक एलिमेंट एज इट इज रखेंगे, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स लेंगे और वो दोनों का ओरिजिनल एंड दूसरे का इनवर्स, उसका हम प्रोडक्ट लेंगे. प्रोडक्ट मींस नॉट मल्टीप्लिकेशन, कंपोजिशन. ओके, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म्स आर मैपिंग्स एंड मैपिंग्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है कंपोजिशन. तो उनका हम प्रोडक्ट लेंगे और वो जो आंसर आएगा वो भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ही होना चाहिए. जब वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा उसका फाइनल आंसर, तो उसकी रवानगी जो है वो आई ऑफ जी में हो जाएगी. एंड इतनी कंडीशन काफी है सब ग्रुप प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले दो एलिमेंट लेते हैं हम. नेक्स्ट क्लेम, ये तो क्लेम प्रूव करना है हमें सब ग्रुप. तो दो एलिमेंट लेट इनर एटोमॉर्फिज्म लेने, तो हम लेते हैं टी ऑफ ए एंड टी ऑफ बी बिलोंग्स टू आई ऑफ जी. याद रखिए आई ऑफ जी के एलिमेंट स्पेशली ऐसे ही दिखते हैं. वेयर ये ए और बी कहां से लिया आपने? वेयर ए एंड बी बोथ आर बिलोंगिंग टू जी एंड दे आर फिक्स्ड. ठीक है, तो देखिए टी यहां से आएगा, जो भी एटोमॉर्फिज्म रहेगा और उसके सफिक्स में एलिमेंट जी का होना चाहिए, तभी वो इनर एटोमॉर्फिज्म बनेगा. और अगर आपको याद होगा तो इनर एटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो होती है, वी नो दैट हाउ दे वर्क. वी नो दैट दिस टी ऑफ ए, इफ एक्टिंग ऑन एलिमेंट ऑफ जी दैट इज एक्स, वी कैन राइट इट्स आंसर एज ए इनवर्स एक्स इंटू ए. And what about TB? If it is acting on element X, then its answer is B inverse into X into B. So this is the definition of conjugacy relation, and that conjugacy relation will give us inner automorphisms.
and Ta, Tb both are inner automorphism. That's why I have written these two equations. Okay. Now the finally target is you take the composition of this and this, and not as it is original Ta and iska inverse lena. So here to show that Ta into Tb inverse belongs to I of G. This is our target to show that it is subgroup. तो ये प्रूव करने के बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि I of G is a subgroup of E of G. All right. Now the question is how to show this. How to show this? तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ करना होगा. अब वो क्या करेंगे? Now here the inverse. अब ये इनवर्स का इस b के साथ हम कैसे जुगाड़ करेंगे? तो देखिए इसके लिए आपको और एक सब रिजल्ट जो होता है ना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनवर्स ऑफ Tb एंड T ऑफ B इनवर्स. तो ये जो इनवर्स है ये आपने इस मैपिंग का लिया है ना. तो मैं आपको एक बता देता हूं कि आपको करना क्या है कि व्हाट इज इट्स आंसर. ये इनर एटोमॉर्फिज्म है, मतलब मैपिंग है, उसका आप इनवर्स ले रहे हो. तो ये अगेन मैपिंग होगा. तो यहां कौन सा एलिमेंट होगा? तो ये इनवर्स इस B के ऊपर ऑपरेट करेगा. तो यहां होगा B इनवर्स. G इज अ ग्रुप एंड B इज अ मेंबर ऑफ G, तो उसका इनवर्स भी यहां रहेगा. तो ये दोनों में आप अगर इफ यू सी वेरी वेरी शार्पली दैट in the left hand side we are considering the inverse of the mapping, and in the right hand side we are taking the mapping with suffix B inverse, and both are equivalent. That we want to show that. So first of all we want to show that this one, and another thing is what we want to show that is T of A composition with T of B is equal to T of BA. Like this. ये दो चीजें सबसे पहले हमको प्रूव करनी होंगी और फिर इन दोनों का इस्तेमाल हम इनको सब ग्रुप या फिर आगे के जो भी स्टेप्स हमने डिसाइड किए उसको प्रूव करने के लिए काम आएगा. तो चलिए अब ये थ्योरम का प्रूफ फिर से हमें चेंज करना होगा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये प्रूव करना है. अब जाके पता चला जब मेरे सामने ये मुसीबत आ गई कि अब मैं इनको इसका मेंबर कैसे बता दूं, है ना. सो दैट्स व्हाई नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दिस टू सब रिजल्ट्स एंड वी विल यूज दिस रिजल्ट्स टू प्रूव आवर मेन थ्योरम. राइट. सो पहले हम ये प्रूव करेंगे, उसके बाद ये प्रूव करेंगे. और यहां पर भी देखिए TA पहले है, B बाद में, और यहां उनका ऑर्डर रिवर्स हो गया. जो सेकंड मैपिंग का सफिक्स था वो पहले लिखना है और फर्स्ट मैपिंग का सफिक्स है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा. ये भी एक अंतर है जो आपको समझना होगा. राइट. तो हम प्रूव करते हैं फर्स्ट थिंग दैट इज TB इनवर्स इज इक्वल टू TB इनवर्स. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? तो करना तो पड़ेगा, है ना. सो टू शो दैट नाउ claim to show that TB or TA, whatever its inverse, is equivalent to T with suffix B inverse. Right. तो ये जो मैंने लिखा है कि इसको अभी हमको प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम वर्ड में लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लिक हो जाए. थोड़ा सा हम कि that is to show that ये क्या है? इनवर्स. सो वी कैन राइट इनवर्स ऑफ TB. इसको हमने वर्ड में लिखा. ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो सिंबॉलिक नोटेशन में है वी हैव रिटन इन द वर्ड इनवर्स ऑफ TB इज इक्वल टू की जगह इज दिस वन. तो जो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा उसको मैंने वर्ड में लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए.
अब टीबी का इनवर्स ऑफ टीबी इज ये, तो इसका मतलब ये जो है उसका मल्टीप्लीकेशन टीबी के साथ आइडेंटिटी आना चाहिए. सो दैट इज टू शो दैट टीबी, और उसका इनवर्स आपको ये प्रूव करना है, तो उसका कंपोजिशन ये आपको आइडेंटिटी लाके बताना होगा. एंड वी नो दैट व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ एनी group multiply to each other and they will give identity, then they are inverses to each other, है ना. तो ये करना होगा. तो now I am considering the left hand side and this is a mapping. That's why I'm taking the action of this mapping on the element of it's a domain. तो domain तो G है, तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये डॉट मतलब कंपोजिशन है, राइट. इसको हम x के ऊपर एक्शन कर लेते हैं और इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज अ कंपोजिशन, देयरफॉर वी कैन राइट दिस मैपिंग फर्स्ट. तो पहला एक्शन टीबी इनवर्स का होगा x के ऊपर, ये ऐसा आएगा. ओके, देन वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ इनर एटोमॉर्फिज्म, तो ये जो सफिक्स होता है उसका हम पहले इनवर्स लिखते हैं, फिर ये अंदर का एलिमेंट और फिर ओरिजिनल सफिक्स, दैट इज ये. ठीक है. नाउ इट कैन बी रिटन एज टी बी ऑफ इनवर्स इज ओरिजिनल एलिमेंट, देन एक्स, देन बी इनवर्स. ओके, अब ये टोटल एलिमेंट टीबी के अंदर, मतलब टीबी इज एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट, तो इसका आंसर आएगा ये जो इनर एटोमॉर्फिज्म है उसका पहले इनवर्स लिखेंगे, फिर अंदर का एलिमेंट जो भी होगा वो लिखा जाएगा, और फिर यहां जो लिखा है ये ओरिजिनल एलिमेंट यहां है. नाउ आई कैन यूज द एसोसिएटिव लॉ, तो हम ब्रैकेट ये दोनों को देंगे, एक्स को यहां लिखेंगे और आखिरी के दो एलिमेंट को एक ब्रैकेट देंगे बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ. एंड यू नो दैट दीज आर द इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, तो इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉ आइडेंटिटी. इसका भी आंसर आएगा आइडेंटिटी से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आता है, तो आइडेंटिटी लॉ से इसका आंसर आएगा x, एंड दिस इज रिटन एज I ऑफ x. तो देखिए शुरू हमने यहां से किया था, खत्म हमने यहां पे किया, तो यहां का जो ब्रैकेट है वो एक्ट हो रहा है x के ऊपर, यहां का मैपिंग हो रहा है x के ऊपर, मतलब एलिमेंट जो है जिसपे वो एक्ट हो रहे हैं दोनों साइड के मैपिंग्स वो सेम है और उनका इमेज भी सेम आ रहा है, इक्वल आ गया है ना. तो आई एम राइटिंग हियर टी बी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू I ऑफ x. देयरफॉर ये मैपिंग वही काम कर रहा है जो ये मैपिंग कर रहा है, देयरफॉर बोथ मैपिंग्स आर इक्वल. देयरफॉर टी बी कंपोजिशन विथ टी बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी. और जब दो मैपिंग का कंपोजिशन आइडेंटिटी आता है तो वो मैपिंग लेफ्ट साइड में जो है दो, वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. तो यहां हमने प्रूव कर दिया कि इनवर्स ऑफ टीबी, ये देखिए इनवर्स ऑफ टीबी इज टीबी इनवर्स, और इसी सेंटेंस को सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसा लिखेंगे. तो मतलब ये चीज हमने प्रूव कर दी, और ये प्रूव करने से अब मेरा फायदा ये होगा कि अगर किसी इनर एटोमॉर्फिज्म का इनवर्स है तो उस इनवर्स को मैं ऐसा ड्रैग करके वो सफिक्स का इनवर्स बना दूंगा. सो दैट इज द बेनिफिट. ओके, claim is to show that the first inner automorphism composition with another inner automorphism is equivalent to this. मतलब दो इनर एटोमॉर्फिज्म को अलग अलग लिखने के बजाय आप एक ही टी लिखिए, और ये जो दोनों है इनका आपको प्रोडक्ट लेना होगा. मैंने गलत लिखा, यहाँ रिवर्स हो जाती है ऑर्डर, पहले बी आता है, मतलब सेकंड एटोमॉर्फिज्म का सफिक्स पहले आता है और फर्स्ट एटोमॉर्फिज्म का सफिक्स सेकंड पोजीशन पे आता है. दैट इज वी वांट टू शो दैट. सो हाउ टू शो दिस? आई विल स्टार्ट विथ LHS. सो दिस इज TA composition with TB and acting on element X. So I can write this as a TA, and according to definition of inner atomorphism,
here it is B inverse X into B. Then again use the inner automorphism definition for TA. तो ये बन जाएगा A इनवर्स, फिर ये बनेगा एलिमेंट जो भी है आपका और ओरिजिनल एलिमेंट A. Use the associative law for the first two product of first two elements, then keeping X in the middle, and you write this one. Now you know that the inverse reverse law, मतलब ये अलग अलग जो इनवर्स दिख रहा है इसको अगर हम कॉमनली लेते हैं तो इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है. तो ये बी ए हो जाएगा x एंड ये बी ए. Now you look at this, the BA inverse X BA. So it is nothing but TBA of X, है ना. इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे हम. तो हमने शुरू किया था LHS से और ये है आपका राइट हैंड साइड. तो आपने प्रूव करके बता दिया कि TA कंपोजिशन विद TB इज इक्वल टू T ऑफ BA. तो ये भी रिजल्ट हमें काम आने वाला है. ठीक है. तो ये दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल अब हमारा मेन थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको करना होगा. ओके फाइन. तो हमारा मेन थ्योरम था कि अब मेन थ्योरम का क्लेम लिखते हैं. ये दो सब रिजल्ट भी आप इसी के प्रूफ में लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा. ठीक है. तो पहले ये दो सब रिजल्ट प्रूव करेंगे हम, ताकि हम इन रिजल्ट्स का फायदा आगे के प्रूफ में हम कर सकें. नाउ क्लेम इज क्लेम. अब हम क्लेम लिखते हैं कि क्लेम लिखते हैं टू शो दैट दिस I ऑफ G इज सबग्रुप ऑफ A ऑफ G. ठीक है. इसमें सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं. वो खुद ऑटोमॉर्फिज्म ही होते हैं लेकिन एक स्पेशल तरीके से डिफाइन किया गया है. दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इनर ऑटोमॉर्फिज्म. It means that all the elements of I of G are coming from A of G. है ना. तो इसलिए clearly we can write this. Clearly I of G is a subset of A of G. Right. Now we have to show that this is a subgroup. So take any two elements. तो पहले एलिमेंट को हम TA बोलते हैं, दूसरे को TB. ये हमने लिए इससे. ठीक है. where instead of where you write for some A and B belongs to G. नाउ इन दो एलिमेंट का आप कंपोजिशन कैसे लेंगे. फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, कंपोजिशन विद इनवर्स ऑफ सेकंड एलिमेंट, और वो दोनों का कंपोजिशन भी अगेन अ मेंबर ऑफ I ऑफ G प्रूव करना होगा. नाउ वी हैव टू शो दैट बिकॉज दिस इज द कंडीशन टू शो दैट सबग्रुप. शो दैट TA composition with inverse of second element belongs to I of G. ये हमको प्रूव करना है. राइट. तो इसका मतलब ये दोनों का कंपोजिशन इज अगेन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, ये प्रूव करना है. ठीक है. सो नाउ हाउ वी कैन प्रूव दिस. सो यू राइट दिस इज TA composition with inverse of TB. It can be written as TA keeping as it is, composition with. ये देखिए, ये हमने अभी सब रिजल्ट में प्रूव किया था कि ये जो इनवर्स है, जो मैपिंग का इनवर्स है, उसको आप ड्रैग करके नीचे जो सफिक्स है उसका इनवर्स बना सकते हो. और रिजल्ट नंबर 2 में भी ये प्रूव किया था कि दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का अगर कंपोजिशन होगा तो वी कैन राइट दिस एज लाइक दिस. एक ही टी, गलत लिखा मैंने, एक ही टी. सेकंड इनर एटोमॉर्फिज्म का सफिक्स पहले लिखा जाएगा इनटू फर्स्ट इनर एटोमॉर्फिज्म का सफिक्स सेकंड पोजीशन. ये बन गया. अब ये जो होता है ये बनना चाहिए G का एलिमेंट, क्योंकि देखिए इनर एटोमॉर्फिज्म में सफिक्स मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ग्रुप G. सो सिंस A and B are the members of G and G is a group.
And in the group, you know that all the closure property, inverse law, identity law, associativity law holds. And therefore, what we can conclude, therefore, inverse of B exists in G, A is already member of G, and according to closure property, ये दोनों G के एलिमेंट का प्रोडक्ट भी अगेन अ मेंबर ऑफ G. सो ये मैपिंग में जो सफिक्स दिख रहा है वो जी का मेंबर मैंने प्रूव कर दिया. देयरफॉर दिस मैपिंग इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी. इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी. एंड जैसे ही ये बना इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इट विल शिफ्ट इनटू दैट आई ऑफ जी. देयरफॉर this B inverse A, this belonging to I of G, and this is true for all TA, TB belongs to I of G, and this is the condition of subgroup, and therefore now I can conclude that this is I of G is a subgroup of what? A of G. Okay. सबग्रुप बन गया. नाउ वी विल define phi is a mapping from G to I of G by phi of एक एलिमेंट आप लेंगे G से, मान लीजिए मैंने A लिया, और उसका जो इमेज रहेगा phi of A, that will be a member of कोडोमेन. और कोडोमेन में तो सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स है, तो वो दिखने में भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म दिखना चाहिए. तो इसका आंसर होना चाहिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म, एंड ए से रिलेटेड है, तो यहां मैं लिख देता हूं ये. वैसे ये प्रूव करना जरूरी होता है कि वेदर दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड और नॉट, बट बिलीव मी, इफ यू विल प्रूव एवरीथिंग, then the proof of this theorem will become so big, and that's why we are putting trust that this mapping is well defined. Otherwise you can prove separately whether it is well defined or not, and that is not a very big task, right? आप जानते हो कि दो एलिमेंट इक्वल लेना है और दोनों का इमेज भी इक्वल बताना है, तो वेल डिफाइन हो जाएगा. ये वेल डिफाइन होता है. ओके, ये ऐसे डिफाइन किया. नाउ द फर्स्ट टारगेट इज टू शो दैट claim is because I wish to use fundamental theorem of homomorphism, और जो मैंने प्लान बताया था उसमें आपको पहले इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, फिर ऑन टू प्रूव करना है, और उसके बाद आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज कर सकते हो. फिर कर्नल आएगा, है ना, वो क्वेश्चन ग्रुप में नीचे, और फिर कर्नल को z के इक्वल बताना है. दैट विल बी द आवर लास्ट टास्क. तो पहले हम प्रूव करते हैं, टू प्रूव दैट दिस मैपिंग phi इज a homomorphism. How we can show that it is homomorphism? तो डोमेन G है, तो उसके दो एलिमेंट लेते हैं. Let x and y belongs to the domain, right? And these are the elements of the domain of phi. Therefore phi will act on these two elements, and therefore what is the answer of phi of x? It can be written as tx inverse according to our definition. ये हमने डिफाइन किया था. तो अंदर का जो एलिमेंट है उसका इनवर्स सफिक्स में रहेगा. एंड हाउ यू विल डिफाइन phi of y? दिस इज t of inverse of y. ठीक है. But for the homomorphism we have to show that phi of xy is equal to phi of x into phi of y. So I am starting with phi of xy. So by definition of phi, it can be written as, how we can write this? This can be written as t of x, y and its inverse. Now it can be written as t of, using inverse reverse law, रिवर्स भी होगा, मतलब सेकेंड एलिमेंट पहले आएगा इनवर्स के साथ, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे जाएगा इनवर्स के साथ. Now according to sub results it can be written as like this. ये
कंपोजिशन विथ लाइक दिस, सॉरी कुछ गलत हो गया, हाँ सब रिजल्ट में इनका ऑर्डर चेंज करना होता है, सो इट इज रॉन्ग. वी कैन राइट दिस एज टी ऑफ एक्स इनवर्स पहले into t of y inverse बाद में. Okay, now see what is the value of tx inverse, that is phi of x. So I can write here phi of x composition with phi of y. So I have started from this side phi of xy and I have proved that it is equivalent to phi of x into, I am commonly using into because it's not meaning that it is an ordinary multiplication, right? These are the mappings and therefore this is a composition because these are the elements of this codomain and codomain is an inner automorphism. So automorphism के लिए तो product means composition होता है. यहाँ x y g के मेंबर है तो g का जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा वो इधर रहेगा. तो ये हमने प्रूव कर दिया फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू g और यही कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म की. देयरफॉर फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म. राइट. नेक्स्ट क्लेम इज claim to show that this phi is onto. This is the bijective map, not bijective, it is surjective map. Onto means surjective, onto mapping. Now how to show that? So to show the onto map, you take element from the codomain. So which element you have to consider? That I am considering that let t of x belongs to I of g, one member from the codomain. And what we want to show that here for the onto, once you take one element from the codomain, then you have to show that there exists one element in the domain, that is in G, whose image under phi is tx. Okay, so here tx you are taking this. Tell me the position of x. Position means where this element x comes from. So here this x is a member of G. G is a group, therefore we know that x inverse belongs to G. हर एलिमेंट का इनवर्स रहेगा ग्रुप में और ये जो G है ये एलिमेंट है ये रहेगा आपके फाई के डोमेन में. सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x इनवर्स बिलोंग्स टू G. ये G का मतलब होता है डोमेन ऑफ फाई. डोमेन ऑफ व्हाट? फाई. डोमेन ऑफ फाई. Domain of phi such that this phi of x inverse is equal to, according to definition of phi you are writing t and here inverse of this element. So यहाँ हम लिखेंगे x inverse. तो inverse का inverse original element, so it is what? tx, जो आपने पहले लिया था. मतलब जब आप कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट लोगे तो डोमेन में एक एलिमेंट आपको मिलेगा, इसकी गारंटी देना होती है ऑन टू में. और ये आपने दे दी कि x tx आपने IG से लिया तो x G का मेंबर बनेगा. G ग्रुप है तो x का इनवर्स G में रहेगा और वही एलिमेंट प्री इमेज का काम करेगा. सो देयरफॉर फाई इज ऑन टू मैपिंग. अब ये होमोमॉर्फिज्म हमने फाई को प्रूव कर दिया, ये ऑन टू प्रूव हो गया. नाउ वी आर रेडी टू अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, we get what we get. Tell me what we get. What is your mapping phi? Phi is mapping from G to I of G. तो फंडामेंटल थ्योरम ये बोलता है कि कोडोमेन जो भी होता है उस होमोमॉर्फिज्म का इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप ऑफ द डोमेन.
तो डोमेन अपान, और यहां आपको कर्नल ही लेना होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, दैट इज कर्नल ऑफ फाई। ये हमने प्रूव करके बता दिया। बट एक्चुअल थ्योरम जो था उसमें G बाय Z था, तो हमने तो यहां लिखा कर्नल ऑफ फाई। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि टू शो दिस कर्नल ऑफ फाई इज नथिंग बट Z। तो व्हाट इज Z? Z को कि इट इज अ सेंटर ऑफ here let Z is a center of group G. What is its meaning? Its meaning is Z is a set containing those elements of G which commutes with every element of G. कमिट, देखो G अबिलीन तो है नहीं, तो अबिलीन नहीं है तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ तो होगा नहीं। कम्यूटेटिव लॉ सबके लिए होना चाहिए तभी वो अबिलियन होगा, लेकिन सबके लिए नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो सब G के एलिमेंट के साथ कम्यूट होते होंगे, कुछ नहीं होते होंगे, इसलिए वो अबिलियन नहीं है। सब एक दूसरे के साथ कम्यूट होंगे तो अबिलियन हो जाएगा। तो सेंटर का मतलब होता है G के वो एलिमेंट हम सर्च करेंगे जो G के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे xg इज इक्वल टू gx फॉर ऑल g बिलोंग्स टू G। मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप G में वो एलिमेंट G के रहते हैं, G के ही रहते हैं वो, लेकिन वो एलिमेंट की खास बात ये होती है कि सेंटर का एलिमेंट है, मतलब वो G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव लॉ देगा। उनको ही लिया हमने। अगर G खुद अबिलीन है तो सेंटर ऑफ G खुद G बनेगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट होंगे, राइट। तो ये होता है सेंटर। और हमें अब क्लेम ये डालना है। क्लेम हमारा ये है कि टू शो दैट और टू प्रूव दैट द कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू दिस Z। ओके, सो हाउ वी कैन प्रूव दिस, राइट। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? ओके, let x belongs to kernel of phi. What is this implies? Tell me. Phi of x is equal to, I think, identity. Yes, identity. Phi of x is equal to identity in the codomain of phi. Codomain of phi है I of G, तो उधर की आइडेंटिटी होती है कैपिटल I। E मत लिखिए, ये आइडेंटिटी G की है। आपका फाई, आपकी फाई का मैप होता है G टू I ऑफ G। तो ये I मतलब आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप। ओके, तो ये हो गया लाइक दिस। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट implication is according to definition of phi it can be Tx inverse is equal to identity map. All right, this is also good. Now I am taking action of these two maps on some elements. So T of x inverse on G, right? So I will take element G here, I of G. तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका हमको आंसर लिखना है। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म का क्या होता है डेफिनेशन? ये जो सफिक्स में है उसका इनवर्स लिखिए, तो इनवर्स का इनवर्स x हो जाएगा, फिर G लिखिए, ओरिजिनल एलिमेंट लिखिए, और I ऑफ G का आंसर आता है G। ओके, सो ये आपका बन जाएगा xg। आप दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन x से करोगे तो ये हो जाएगा gx। देखो कम्यूट हो रहा है ना, x भी G के साथ हो रहा है, G भी x के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि G इज रैंडमली एलिमेंट आपने लिया था, एनी एलिमेंट, तो इसका मतलब x G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट हो रहा है। तो ये तो तभी होता है जब ये x सेंटर का मेंबर रहेगा। अब इसी टर्म्स को आप नीचे से ऊपर जाओगे तो पहले आप x का एलिमेंट z से लीजिए, तो z की डेफिनेशन के हिसाब से ये आएगा, फिर इसके हिसाब से x इनवर्स से आप जब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा, और फिर इसका आंसर आप ये लिखोगे, इसका आंसर ये लिखोगे, इसका आंसर ये लिखोगे। तो बोथ वेज से ये हो गया कि x इज अ मेंबर ऑफ कर्नल ऑफ फाई, देन दैट x इज अ मेंबर ऑफ z, और इन द रिवर्स वे यू कैन से दैट व्हेन x इज अ मेंबर ऑफ z देन दैट x इज आल्सो मेंबर ऑफ कर्नल ऑफ फाई। तो ये जरूरी होता है क्योंकि
जब वन वे से हम आते हैं तो कर्नल ऑफ फाइव का एवरी एलिमेंट जेड का एलिमेंट है, तो कर्नल ऑफ फाइव इज अ सबसेट ऑफ जेड। और नीचे से जब हम ऊपर प्रूव करते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ जेड इज अ मेंबर ऑफ कर्नल ऑफ फाइव, तो जेड इज अ सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ फाइव। तो वो दोनों सबसेट रिलेशन हमें मिल गए, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाइव। ये हमने प्रूव कर दिया, एंड देयरफॉर फाइनली वी गॉट द रिजल्ट, that is I of G is isomorphic to G by kernel of Z, kernel of phi, and that is equivalent to Z. So this is the end of this theorem. I hope you understood it.